This is Sita ma'am again in front of you. We have done the first part, chapter 16 of Gupta Empire. Now, continuing with the second part, let's move on to our next part, that is economic condition. During Gupta Empire, better interstate trade flourished during the period. Interstate means like Kashmir. From Kashmir, the apples were transported to all parts of the India because apples are grown in Kashmir only. In the same way, India during Gupta period, the people used to transport the things from one state to other state. like जैसे एप्पल्स पूरी इंडिया में कश्मीर भेजता है और गेहूँ पूरे इंडिया में पंजाब से ही आते हैं, उसी तरह उस ज़माने में जो कुछ जिस एरिया से होता था वो बाकी स्टेट्स में पहुंचाए जाते थे. उसके लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी होता था. ट्रेड के लिए अच्छी रोड्स बहुत ज़रूरी होती थी. अच्छी रोड्स होने से ट्रेड अच्छा होगा, अच्छे ट्रेड होने से अच्छा बिजनेस होगा, तो अच्छी बिजनेस होने से अच्छा किंगडम, अच्छी प्रजा, अच्छा धन संपत्ति सब कुछ होगा. सो ट्रेड वॉज कैरिड डाउन by land and river, and mostly the important places of trade were Peshawar, okay, and Mathura, Kusambi, Tamralipti, and then Barkucha, Ujjaini. All these were connected with well developed roads, and they had also inter waterways system, especially in the river Ganga, Yamuna, and see here Brahmaputra, Kaveri, Krishna, Godavari. So waterways were transported through this way, and Indian imports were especially important. Exports items were the pearls, diamond, precious stones, garments, ivory products, indigo, etc. So usually India is to export all these things, यानी कि ये सब भेजते थे, और वहाँ से बाहर से जो चीज़ें मंगवाई जाती थी वो थी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, स्पेशली सिल्क, हॉर्सेस, एंड दीज वर फेमसेस. और ये हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ से आते थे? बांग्लादेश यानी कि म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बाली, चापा, वियतनाम, कंबोजा यानी कंबोडिया, इन सब से हमारे फॉरेन ट्रेड्स भी रहते थे. उस ज़माने में हम लोग फॉरेन ट्रेड्स भी किया करते थे. एंड हमेशा एक कंट्री जब भी अच्छा प्रोग्रेस करेगी या एक राज्य जब भी अच्छा प्रोग्रेस करेगा अगर उसका फॉरेन ट्रेड रहता है. देन एग्रीकल्चर वॉज एन इम्पॉर्टेंट occupation of the people, and the farmers were the owners of the land, providing agriculture facilities. Irrigation facilities were there, especially with the help of wells, tanks, canals were constructed. The main crops were wheat, rice, pulses, barley, sugarcane, cotton, jute, vegetables, etc. And taxation was carried on where the main revenue through the main revenue tax were collected from the people, so that the king can make do construction of roads or can help out in trade and other things, or irrigation facilities. Then comes religion. So during this time the king was the most important people, so whatever the king followed people used to follow the same. And first they were followers of Vaishnavism and Sivism. Later on they followers of Buddhism and Jainism as well. There was no conflict among them. No conflict means there was no लड़ाई झगड़े नहीं होते थे उन दोनों इन लोगों के बीच में. देयर ऑल वेर वर्शिप हारमोनियसली, लिव्ड हारमोनियसली, एंड सन वॉज द ओनली गॉड एट द टाइम वर्शिप्ड बाय many people, and many sun temples were built, and they were kings gave me grants and donations to all the religious purposes without any discrimination among Hinduism, Jainism, or anything like that. It was a great it was a period of revival of Hinduism and Sanskrit. Usually in this period Hinduism and Sanskrit grew at the latest. And then comes art and architecture. Art and architecture. The artwork and literature architecture of Gupta period was highly developed in all the branches. Especially it was considered that during this period
the Gupta period, the art and architecture was at height. Sculpture यानी कि मूर्ति बनाना, पेंटिंग, टेम्पल बिल्डिंग, मेटलर्जी, ये सब बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था. माना जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड दैट द बिगनिंग ऑफ वन रूम टेम्पल. शुरू में मंदिर एक रूम के होते थे जो इसी पीरियड में बनाए गए. बाद में ये बड़े बड़े रूम के मंदिर होने लगे. एक रूम, वन रूम टेम्पल में एक इमेज, एक मूर्ति रख दी जाती थी, उसी की पूजा होती थी, डेटी. ओके. एंड बाद में एक बड़े बड़े मंदिर बनने लगे एंड इंस्टॉल्ड मेन गेट पे होते थे. एंड लेटर ऑन द साइज ऑफ द टेम्पल्स बिकेम लार्जर. बड़े बड़े टेम्पल्स बनने लगे एंड वन रूम से वो एक बड़े बड़े रूम के विशाल मंदिर बनने लगे. वन रूम के टेम्पल के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे सांची, बित्रगांव, देवघर. ओके. Then Jhansi, the temples were decorated with beautiful artistic sculpture. आपको अच्छे अच्छे खास sculpture मिलेंगे. Then comes अजंता एंड एलोरा जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है और ये बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग. ऐसा माना जाता है कि यहाँ की पेंटिंग्स आज भी सजीव हैं, बोल उठेंगी. और ये रॉक कट टेम्पल्स, ये रॉक कट टेम्पल्स मतलब एक बड़े से पहाड़ को काट कर रॉक बनाकर टेम्पल्स का रूप दिया गया. स्पेशली मिनी इमेजेस कंसर्निंग ऑफ कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. Large images of Varha of 4th century, images of Mahavir Swami, Mahatma Buddha were the fine examples of excellence of sculpture making this period. स्पेशली स्कल्पचर की भी टेक्निक यहाँ पे बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड फॉर्म में मिला. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड एंड द स्कल्पचर इज़ दैट दे वर टोटली फ्री फ्रॉम फॉरेन इम्पैक्ट. यानी कि फुल इंडियन देसी चीज़ आपको इस पीरियड में देखने को मिलेगी. एंड देन कम्स आर्ट एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ऐसा माना जाता है कि गुप्ता पीरियड वॉज अ गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर एंड कालिदास एडोन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्तु. मैंने पहले भी आपको बताया कि कालिदास जो है कोर्ट, चंद्रगुप्त कोर्ट के वन ऑफ द 9 जेम्स माने जाते थे. ही रोट अभिज्ञानम, शकुंतलम, मलवी कवि मित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सारी किताबें उन्होंने लिखी. उसके अलावा भाषा जो अलग एक तरह के और पोएट थे, उन्होंने 17 ड्रामा प्लेज लिखे. विशाखा दत्ता उन्होंने मुद्राक्ष वेल नोन पोएट है. हरीश सेन उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति है. उसके बाद विष्णु गुप्त द्वारा लिखा पंचतंत्र बहुत फेमस हुआ था. कलेक्शन ऑफ टेल्स विथ मॉरल टीचिंग्स जो कि विष्णु चंद पंचतंत्र का मेन पार्ट था, वो आज भी हम पढ़ते हैं. ये विष्णु गुप्त जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम, विष्णु शर्मा गुप्ता पीरियड के टाइम के थे और उन्हीं के द्वारा रचित ये बुक थी. एंड दिस पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ इसमें लिटरेचर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, स्पेशली पाली, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज. तमिल एक लोकल लैंग्वेज हो गई थी, या लोग ज़्यादा से ज़्यादा तमिल एक सभ्य भाषा या संस्कृत का एक अच्छा विस्तृत रूप माना जाता था. इसीलिए रामायण एंड महाभारत को बाद में तमिल में ट्रांसलेट किया गया. देन कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. माना जाता है कि गुप्ता पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सुंदर रूप या शानदार रूप या हाइटेस्ट रूप या जीनित रूप आपको देखने को मिलेगा. द स्पेशली द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉट ओनली इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में, और वो भी शानदार वेल डेवलप्ड माना जाता है. स्पेशली आर्यभट्टा को ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन माना गया है. ही प्रूव दैट अर्थ वॉज मूविंग अराउंड द सन, नॉट द वाइस वर्सा. क्योंकि ये माना जाता था कि अर्थ जो है वो स्थिर था और सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता था. आर्यभट्टा ने प्रूफ किया कि सन स्थिर है और धरती सन की चक्कर लगाती है. यहीं से आर्यभट्टिम नाम की एक बुक भी लिखी गई ऑन मैथमेटिक्स. और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ जीरो, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू, डिजिट, इंस्ट्रक्शन ऑफ जीरो, डेसिमल नंबर, ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड एक्लिप्सिस सबको बाद में काफ़ी विस्तार से समझाया गया. यहाँ तक कि आर्यभट्टा ने तो एक्लिप्स की भी प्रेडिक्शन यानी कि पूर्व जानकारी देने में बहुत अच्छा रोल
प्ले किए। देन कम्स चरक। चरक फिर एक आयुर्वेद डॉक्टर माने जाते थे। अ फिजिशियन रोड चरक संहिता एंड सुश्रुत जो कि उस जमाने के फादर ऑफ सर्जन यानी कि आज भी फादर ऑफ सर्जन माने जाते हैं, सुश्रुत संहिता ने लिखा। इनके द्वारा जो भी फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस में जो भी आप कुछ आज देख रहे हैं ये इन्हीं की बदौलत, इनकी बुक सुश्रुत संहिता एंड चरक संहिता की देन है। आज इंडिया में जो थोड़ा बहुत हमारा मेडिकल जो उपलब्धियां मानी जाती हैं इंडियन फील्ड में, ये हमारे महान चरक और सुश्रुत की देन है। नागार्जुन जो कि एक फेमस स्कॉलर माने जाते हैं, साइंटिस्ट माने जाते थे। और ये जो आपको मेहरुली का मैंने आपको पहले एक पिलर बताया था, उसको जो रस्ट फ्री बनाने में योगदान है ये नागार्जुन जी की, इनकी फ़ोटो यहाँ है, उनका रोल है। माना जाता है कि ये कभी भी इनको इस आयरन पिलर को जंग नहीं लगी, जबकि आपको पता है आयरन को तो जंग लग जाती है। और इसका कंपोजिशन ऑफ आयरन जो है आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए कि इन्होंने कैसे बनाया कि आज तक इसमें जंग नहीं लगी। ओके इतने महान है उस ज़माने में हमारे पास साइंटिस्ट और स्कॉलर्स थे। और इसीलिए और उस सब के साथ साथ एक गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम युग माना जाता है। एंड उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट इज़ गुप्ता गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज गोल्डन एज स्पेशली कि ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बहुत शांति थी, राजाओं के बीच में बहुत झगड़े कम थे, शांति थी, यूनिटी थी लोगों के बीच में, राजाओं की बात मानते थे, तो इस वजह से सब कुछ सिस्टमेटिक चलता था। देयर वॉज अ ग्रेट अनप्रेसिडेंट प्रोग्रेस, बहुत अच्छा प्रोग्रेस था, क्योंकि जब सब चीज़ें सामान्य अच्छी चलती हैं तो बहुत अच्छी होती है। तो आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ। गुप्ता रूलर्स मेड ग्रेट एफर्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिंदू एंड संस्कृत रिलीजन पे भी गुप्ता पीरियड ने गुप्ता रूलर्स ने बहुत ध्यान दिया। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वे आइडल एंड हैंस द सब्जेक्ट वॉज हैप्पी। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि राजा बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लोग उनका बहुत ध्यान रखते थे, लोगों का बहुत ध्यान रखते थे एंड लोग भी उनको बहुत इज्जत देते थे, उनकी बात को मानते थे। लोगों को के बीच में बहुत प्यार था, यूनिटी थी, पैसा था, पैसे की कमी नहीं थी। एंड ब्राह्मण स्कॉलर्स एंड सेंट्स एंड वुमेंस की बहुत रेस्पेक्ट थी सोसाइटी में। महान लोग आर्यभट्टा, वाममीरा, नागार्जुन जैसे और कई दिग्गज इस ज़माने में आए और हमारे गुप्ता डायनेस्टी को चरम सीमा पे ले गए। एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी पढ़ने की व्यवस्था थी, स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि नालंदा, कनौज, तक्षशिला, उज्जैन, और ऐसा माना जाता है कि फाहिन इसी गुप्ता पीरियड में आए थे। और उन्होंने गुप्ता के फाहिन जो कि फॉरेन साइंटिस्ट चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, इंडिया में आकर पढ़ रहे थे। एंड एनकरेज गुप्ता रूलर्स ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सब चीज़ को बढ़ावा दिया। और यहाँ तक कि हम उस ज़माने में सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स का प्रयोग होता था। इससे पता चला कि इंडिया एक सोने की चिड़िया बन गई, और यहीं से इंडिया एक सोने की चिड़िया कहलाने लगा। और उसके बाद से इंडिया के तरफ चारों तरफ से काफ़ी लोग आकर्षित हुए, ब्रिटिशर्स, तो बाहरी लोग इंडिया को लूटने आए, और इंडिया को खूब लूट के क्लास 7 में आप जब जाएंगे तो इंडिया को कितने लोगों ने आकर लूटा ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ तक का चैप्टर ख़त्म होता है, और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।